شکر آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں ایڈم بھائی آپ؟ سر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ سے بات کرنے کے بعد پتہ لگے گا کیسا ہوں۔ ایڈم بھائی ایسا نہ کیا کریں، ایک آپ کے فین ہیں، آپ یقین کیجئے کہ پسند کرتا آ رہی ہے سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں ایڈم بھائی آپ؟ سر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ سے بات آ رہی ہے سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں ایڈم بھائی آپ؟ سر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ سے بات کرنے کے بعد پتہ لگے گا کیسا ہوں۔ ایڈم بھائی ایسا نہ کیا کریں، ایک آپ کے فین ہیں، آپ یقین کیجئے کہ پسند کرتے ہیں آپ کو، آپ کا اور ان کا نا، میں پہلے میرا نام تو آ ہی گیا ہوگا، پاکستان سے بات کر رہا ہوں میں، فرسٹ ٹائم ہی لائف میں لہجے آپ سے پتہ بات لگتا کی ہے۔ ہاں، فرسٹ ٹائم ہی بات کی ہے آپ سے۔ تو آپ کو میں نے اپنی ساس مانا ہے، ساحل بھائی کو اپنی امی اماں مانا ہے، وہ بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، آپ بڑے یار غصے میں بات کرتے ہیں، لیکن ہیں تو دونوں کمال اپنے ہوگی، نا خیر۔ ساسوں کو ذلیل کر دو تم یہاں پہ بہن۔ نہیں، ساسوں اور کو نہیں کرتے، آپ ساس بنتے ہو نا، لیڈیز کی ساس بنتے ہو، سب کو آپ پہ یار غصہ آتا ہے تو ساس پہ غصہ آتا ہے نا۔ ایک آپ نے ساتھ اماں رکھی ہوئی ہے، یہ ہماری والدہ ہے ساحل بھائی۔ کیسے ہیں ساحل بھائی؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ ابھی تک آپ مومن ہیں ذکریہ بھائی؟ میں بالکل مومن ہوں سر، بالکل مومن ہوں، لیکن مومن بس ایک کنارے کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں، بس یہ سمجھ لیں کہ آلموسٹ ارے اندروں میں تھوڑی سی پنجابی اگر بول دوں تو ایڈم بھائی کو سمجھ آ جائے گی، اندروں ہو گئے نے باہروں ہونا ہے۔ میں ایک چلو دو چیزیں ساحل بھائی، کریکٹ آپ ان کرنے سے کے لیے گپ آیا تھا۔ لگاؤ، میں ذرا 10-15 منٹ میں آتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے ایڈم بھائی جی آئیں گے آپ؟ ذکریہ بھائی، اچھا، چلے گئے۔ آئیں گے 10-15 منٹ میں آئیں گے۔ جی بولیے، آپ کیا بول رہے تھے؟ ساحل بھائی، میں ایک دو چیزیں آپ کی کریکشن میں لانا چاہ رہا تھا اپنے نالج کے ہوں، حوالے سے۔ میں بیسیکلی ایک انجینئر ہوں، پاکستان میں ہوں، اور اوکے ایک تو یہ سر، آپ نے زیادہ تھوڑا سا یہ آئیڈینٹی، زیادہ انفارمیشن اوکے ڈسکلوز اوکے نہیں فائن، کرے، آپ کو آئی کین پرابلم ہو انڈرسٹینڈ، سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں مینشن کیا ہے کہ 10 لاکھ پاکستان میں ایکس مسلم یا ایگنوسٹک ہیں۔ آئی ہوں جسٹ وانٹ ٹو کریکٹ یو، اور میں بالکل آپ کو اوتھینٹک میں رہتا ہوں پاکستان میں، مجھے ہوں پتا ہے پاکستان میں سر، یہ میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، آئی ایم 47-46 ایئرز اولڈ، کہ پاکستان میں مور دین 1 کروڑ ہیں ایگنوسٹک یا ایکس مسلم، مور دین۔ کیا مذاق کر رہے سر؟ سر میں آئی کین گیو یو، آپ مجھ سے پرائیویٹ میں لیجئے گا، میں آپ کو پروف بھی دوں گا۔ اس کی ہوں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، انسان ایک دیگ کا دانا ہوتا ہے نا، اسی سے پتہ لگتا ہے کہ دیگ کیسی بنے گی۔ بالکل ہاں میرے اپنے کالج فیلوز ہیں، یونیورسٹی فیلوز ہیں، اگر میرے کوئی 20 سے 25 فرینڈز ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ٹوٹلی ہی اسلام کے اگینسٹ ہے۔ اسلام سے اگینسٹ تو نہیں کہوں گا، لیکن وہ ریئلٹی کی طرف ہے۔ ریئلٹی سے اوکے مراد یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے۔ ابھی جس نے کمنٹس کیا، ایڈم نے بڑی اچھی بات کی کہ جس محترم نے کہا تھا نا، ساحل اور ایڈم پہ یقین نہ کریں، ریدر دین ریسرچ کریں، تو میں ہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ساحل اور ایڈم کی سن کے تو ہو سکتا ہے شاید آپ 2 مہینے 3 مہینے بعد ایگنوسٹک یا ایکس مسلم بن جاؤ، یا اسلام کی ریئل پک آپ کے سامنے آ جائے، لیکن اگر ریسرچ کرنے لگو گے نا تو بھائی 2 سے 4 دن کے اندر ہی دماغ گھوم جائے گا۔ بہت زبردست کہا آپ نے، ریسرچ۔ یقین کریں، اگر وہ ریسرچ خود سے کر لی نا، تو انسان کے اپنے اندر ایک ایگو ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک شعور ہوتا ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے، ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں میری بات سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اگر انہوں نے ریسرچ کر لی تو وہ بہت جلدی ایکس مسلم اور بہت جلدی ایگنوسٹک بن جائیں گے، جبکہ ساحل اور ایڈم کو سن کے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لے۔ تو پاکستان میں اسلام آباد میں نا، میرا ایک سرکل ہے اسلام آباد میں، ایک کیپٹل سٹی ہے ہمارا، اور سر وہاں پہ کچھ ہائیلی پھر جی سے جی آپ تھوڑی زیادہ انفارمیشن دے رہے ہیں، تھوڑا خیال رکھیے سر۔ پاکستان میں آپ میں کام کے حوالے سے دے رہا ہوں، کام کے حوالے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کچھ ہوں ایسی سوسائٹیز سے میرا ملنا جلنا ہے کہ جو اچھی فیملیز ہیں، پولیٹیشین ہو گئے، کچھ میڈیا سے ریلیٹڈ ہو گئے، تو میں ریفر دوں گا آپ کو اویس بھائی کا، اویس اقبال، شاید آپ سے بات ہوئی تھی، ان کی اسٹریم بھی ہاں، آئی ان تھی، کا یہاں یو کے میں اسٹریم ہے، بھی ٹھیک کیا ہے۔ ہم نے۔ ہاں ہاں، تو وہ ان سے میرا ایک لنک میڈیا کے تھرو بنتا ہے، وہ اگر ان سے بات ہوئی تو نمبر پتہ نہیں لگا مجھے کب چلے گئے US سے، نمبر ملے تو لازمی ان سے ریفرنس لیجئے گا، ان سے میں آپ کو وہ شیئر کروں گا۔ تو وہ جیسے اویس اقبال 2004-2005 سے تھے نا، تو آپ کو ہاں کیا لگتا ہے کہ صرف اویس میں ہی ایک عقل تھی، یا اویس کے اندر ہی ایک سینس تھا، یا اویس میں ہی شعور تھا؟ 2004 سے لے کے 2024 تک پاکستان میں اویس جیسا کوئی بندہ نہیں تھا۔ ہاں، نہیں آپ کی بات صحیح ہے، سوچنے والی بات ہے۔ بہت بندے تھے، اور
अभी इस वक्त पाकिस्तान में मैं सिटीज के हवाले से कहूं, 4 से 5 सिटीज में मैंने ट्रेवल किया है। आई वाज रिसर्च। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो ये अब इन बातों से हट गए। एक तो उसकी वजह ये कि जो पहले वाली जनरेशन थी, दादा दादी मामा नानी, वो पुराने वाले लोग जिन्होंने कूट कूट के भरा हुआ था, इस्लाम में ये होता है, इस्लाम में वो होता है, इस्लाम में फलाना होता है, वो चीजें जब जब लोगों के पास रियलिटी आई, लोगों का साइंस पे बिलीव होना शुरू हुआ, वो ऑटोमेटिकली बैक कर गई। उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, फिर उस पे सोने पे सुहागा ये कि आप जैसे लोग आ गए, वो लोगों ने हाँ। जो हकीकत बयान करना शुरू की। अभी एडम भाई ने एक बात की कि मुफ्ती तारिक मसूद, मैं अच्छी तरह जानता हूं उसकी रियलिटी क्या है, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग कि किसी के पर्सनल क्या बोलना। तारिक मसूद हो गया, और ये जाकिर हो गए, तारिक जमील साहब हो गए हमारे पाकिस्तान के अंदर, ये लोग सर ये आपके ऊपर ब्लेम करते हैं कि ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम, ठीक है। मैं इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। एडम भाई से शेयर जरूर कीजिएगा ये बात मेरी, कि जी एडम जी भाई ने कहा ना कि वो खुद ये काम करते हैं इसलिए हमें ऐसा समझते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई उन्होंने एक दुकान डाली है, वो दुकान उनकी चल रही है, वो दुकान पे उनकी बिक्री हो रही है। आप लोग आके अच्छे अखलाक के साथ अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, तो ये वो मालिक बने बैठे हैं जिन्हें डर है कि अगर कस्टमर इनकी तरफ चला गया तो फिर हमारी बिक्री बंद हो जाएगी। बिल्कुल। समझ रहे हैं? हाँ उनका मकसद ये है। वो वाजदी साहब अच्छी तरह जानते हैं। अब अवैस ने जो डिबेट की वाजदी साहब के साथ, मैंने उसको पूरा पूरा सुना, पूरा चेक किया। अच्छा, फिर वो मोमिन हजरात वो छोटी छोटी मीमें बना बना के ही बस रह गए एक दूसरे को खुश करने के लिए। कैसा रह जा कि कोई एक आने की बात समझ नहीं आती, एक आने की। मैंने बड़ी कोशिश की सुनने की, आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने उनको हाँ बड़ी कोशिश की। वो हो गया एक, वो आमिर हक हो गया कि यार हो सकता है साहिल गलत हो सकता है ये बंदा घुमा रहा हो, मुझे कोई पॉजिटिव वे तो मिले, कोई पॉजिटिव बताने वाला तो हो। लेकिन जब मैंने उनको सुना तो यकीन कीजिए, उनको सुनने के बाद आपकी बातों पे मुझे बिलीव ज्यादा हो गया। और ऐसा बहुत से ये लोगों के साथ हो रहा है। हकीकत है, हकीकत है, इट्स अ रियलिटी। उनको सुनने के बाद जब लोग आपकी सुनते हैं, फिर वो एक छांव देखते हैं ना। इंसान सोचता है कि यार मेरा सेफ्टी पॉइंट कहाँ पे है, मैं किसके पास जाऊं? मैं यासिर के पास जाऊं, मैं आमिर साहब के पास जाऊं, मैं वो अबू जर आता है, उसको भी मैंने सुना था, उस पे जाऊं। वो जिस तरह डिफेंड करते हैं, जैसे अबू जर ने कहा कि जी वो चील को मारना हराम है, चील को मारना हाँ सवाब है, चील और कौवे को। तो मैं उसकी लॉजिक सुनने लगा हुआ था। यार मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है ना, मैं इंजीनियर मिर्जा को भी सुनता रहता हूँ, लॉजिक वाला बंदा है। वो सबसे ज्यादा अच्छी खिदमत कर रहा है पाकिस्तान में आप लोगों की। मैं एक बात बताऊं, हाँ 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 सही। वो आपके घर के जो दरवाजे की चाबी है ना, वो इंजीनियर मिर्जा है पाकिस्तान में। सही बात ये है। तो आप वो इमाद जैसे वो फालतू बंदों से, ढकी किस्म के बंदों को जिनको कुछ सेंस नहीं है बात करने का, उनको ले लेते टीम में। एक दो दफा मैंने बात सुनी, मैंने कहा ये कहाँ चला गया यार, पागल आदमी। इसका क्या काम था एक वहां पे मुफ्ती जाके साहब करने हैं, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को। मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा ये ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मानूस हो, उल्टा मायूस हो। इतने लोग वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। आपको एक यार आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। यकीन करें, आई डोंट हैव एनी वर्ड टू टेल। मैं आपको एक रियली अपनी मजे की बात बताऊं, मजे की बात साहिल। जी मैं इस बंदे की स्ट्रीम पे मैंने नोटिफिकेशन लगाया हुआ है। इस बंदे को मैं सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए सुनता हूँ, अपने आप को थोड़ा एंटरटेन करना हो। बहुत भूखा है जबरदस्त। ये, पागल आदमी है, क्रेज हुआ हुआ है इसको फेमस होने का, एक बीमारी हुई हुई है। और मैंने एक प्रेडिक्शन की है इसके लिए, आज से एक हाँ, 1.5 महीने पहले मैंने ये कमेंट्स किया किसकी था इस इमाद पे, की ये बात कर जवाब रहे दे हैं आप? देंगे। इमाद इमाद इमाद। अच्छा मैंने हाँ इसके लिए प्रेडिक्शन की है, और आज ऑनलाइन लाइव आपके साथ भी कर रहा हूं, और भी बहुत से लोग सुन रहे होंगे, कि ये बंदा आपको, आप लोगों की लिस्ट में खड़ा हुआ इस्लाम के खिलाफ लड़ता हुआ नजर आएगा। इमाद ना। हाँ, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये एडम भाई के मिन्नतें करता हुआ नजर आएगा, एडम भाई मुझे एक दो रेफरेंस दो, मैं भी लाके इनको लगूं। ये ऐसा बंदा है, ये नहीं, कभी शियों में चला जाता मेरे है, को कभी ऐसा लग सुन्नियों में रहा चला है जाता है। जिक्रिया भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इमाद भाई को अगर किसी तरीके से पाकिस्तान से निकाल कर अगर यूएस में किधर सेफ जगह पे अगर डाल दे इमाद भाई को,
तो इमाद भाई भी खुल के फिर एक्स मुस्लिम चैनल ओपन करेंगे। अबे भाई तुम यूएस की बात कर रहे हो, इसको खाली 50 लाख 1.5 लाख रुपए का इसका टिकट दुबई का करा के इसको जुमेरा बीच पे बिठा दो ना, इसको थोड़ी सी वो बिकनी शिकनी दिखा दो, ये हाथ में लेके घूमेगा। ये जितनी बातें करता है ना तकवे की, ये अपना तकवा हाथ में ले लेके घूमेगा रोडों पे। और उसके बाद इसकी बातें देखना तुम। अबे भाई अंदर से वैसी आदत तो जनाना है यार, टेढ़ी टेढ़ी गर्दन करके तो बात करता ही है वो, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। मैं महलीज के साथ ये बात कर रहा था, ठरकी तो है महलीज के लिए, पागल हुआ था। अच्छा बात कर रहा था महलीज के साथ, वो उसको कह रहा है आप मुझे रेफरेंस दे, महलीज कह रही है जलेबी ना बनाओ सीधी बात करो। अबे भाई वो सेंसिबल लड़की है यार, मिस पाकिस्तान रह चुकी है यार, उसको बात करने का पता है। अब ये जाता है हर किसी की स्ट्रीम में फेमस होने के लिए। अच्छा फिर वो टिकर बनाएगा महलीज के साथ, महलीज को इस्लाम की दावत दी, वो खुद से ही शुरू हो जाता है। इससे अपने मुफ्ती तंग है, यकीन करो। जेलम के मुफ्ती हो गए, गुजरात के हो गए, लाहौर इस्लामाबाद के, ये खुद साख्ता आलिम भी है। इसके पास एक, मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से सुनेगा, आलिम की कोई डिग्री नहीं है इसके पास। ये बना हुआ पागल एक्स मुस्लिम एथियस्ट को मैंने ये कर दिया, एथियस्ट को। अबे भाई एथियस्ट को तुम्हारे मुफ्ती कर नहीं सक रहे यार, तू जेलम का 2% का मौलवी, साले तू एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर बिक जाने वाला, तू उठा के इस्लाम का ठेकेदार बन रहा है। करिए साहब, आपको टाइम पास मिलेगा अच्छा भला, इमाद का डिस्कशन है इनके साथ में। हाँ बिल्कुल अमित भाई, बिल्कुल अमित भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये टाइम पास मिलेगा। टाइम पास नहीं है असल में। आपकी बातें सुन के इमाद जो है ना वो खुदकुशी कर ले, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अबे भाई मैंने इसको 10 दफा चैलेंज किया हुआ है। मैंने कहा भाई मैं इंजीनियर हूँ, छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ, कुछ मैंने भी इस्लाम को पढ़ा हुआ है, किर्रत के मुकाबले में करता रहा हूँ, स्कूल में मदरसे में अच्छी तरह जानता हूँ। और आपको एक बात और बताऊं, अमित भाई सुन रहे हैं, साहिल भाई सुन रहे हैं, पाकिस्तान में एक और रियलिटी आपको बताऊं, मौलाना की, मौलवियों की, मजेदार, तो शायद हो सकता है किसी ने ना बताई हो जी। कभी आपके इंडिया में कोई मौलवी हुआ, कोई हाफिज हुआ, कोई इस तरह का आदमी जो मदरसे से पढ़ के निकला और आपकी लिस्ट में आ जाए, आपके कांटेक्ट में आ जाए, तो उस बंदे को अकेले में बिठा के ये बात जरूर पूछिएगा कि जो मौलवी होते हैं, जो खास तौर पे मदरसों में पढ़ते हैं, अब देखें मेरे लिए सब रिस्पेक्टेड हैं, बहनें बेटियां सब माए बहनें एक जैसी होती हैं, लेकिन इनकी जो फीमेल्स होती हैं, इनकी जो खवातीन होती हैं, वो एकदम से दूसरे बंदे के चक्कर में क्यों आ जाती हैं? वो क्यों फिजिकली रिलेशन दूसरों के साथ फौरन जोड़ने को तैयार हो जाती हैं? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस मैटर? हाँ मौलवियों की जो इनकी खास होती हैं, जो दूसरों पे पाबंदियां लगाते हैं, वो इनकी जो होती हैं, अबे भाई बच्चेबाजी कर करके इनके हुए होते हैं खत्म, ठीक है, इनको हुआ तो चस्का। अब मौलवियों की बीवियां एक नहीं 4-5 केसेस मेरे सामने हैं, आंखों के सामने, मेरे सामने, मैं तो देख चुका हूं ना। तो इनकी बीवियां इस तरह के रिलेशन में क्यों भाग दौड़ के जाती हैं, ये किसी मौलवी से पूछिएगा, आम जनरल बंदा नहीं जानता होगा ये बात, वो आपको बताएगा इसका रीजन। अच्छा फिर मैं एक, हमारे पाकिस्तान में एक इलाका है, इलाके के नाम लेने में प्रॉब्लम नहीं है ना साहिल भाई? नहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अरे भाड़ में जाए प्रॉब्लम यार, प्रॉब्लम करते करते साले हमने 1400 साल गुजार दिया, प्रॉब्लम करते ही अगले आगे चले जाएंगे। दुनिया मरीज पे जा रही है, प्लूटो पे जा रही है, इंडिया वाले साले चांद पे पहुंच गए हैं। इंडिया वालों की तरक्की के लिए हम पागल हुए पड़ी है। ये हमारी जनरेशन को आधा इग्नोस्टिक तो आपका इंडिया कर देगा। हाँ। आपके इंडिया की सक्सेस और तरक्की, मैं कहता हूं यार मोदी जैसा बंदा, ओ भाई बंदा मोदी जैसा ना हो, मोदी का एक 10% भी आ जाए पाकिस्तान में, खुदा की कसम पाकिस्तान बड़ा तरक्की कर जाएगा। हाय 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 हाय, मोदी का 10%। इंडियन मुसल्टों के पीछे पिछवाड़े में आपने आग लगा दी है बात बोल। इंडियन मुसल्टों के पिछवाड़े में आग नहीं लग रही। मसला ये आ रहा है कि मोदी की जगह अगर कोई मोहम्मद अशरफ होता और वो बेड़ा गर्क भी कर देता इंडिया का, तो यही मुसल्टे आपको कह रहे होते, हाँ ये कह रहे होते कि इंडिया देखो कितनी बड़ी ताकत है। वो मोदी वो पॉजिटिव वे दिखा रहा है पूरी दुनिया को यार, उसने प्रैक्टिकली दिखाया है। देखो मेरे वो ना कोई धर्म का है ना कोई वो, लेकिन पाकिस्तान में जो यूथ जनरेशन है 70% इस चीज को एग्री करती है। आप शोएब चौधरी के वो देख लें वीलॉग, आप अपना यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें, लोग मोदी को प्यार करते हैं भाई, उसकी पॉलिसीज को प्यार करते हैं, वो अपनी आवाम के लिए जो कर रहा है उसको प्यार करते हैं। बाकी मैं कहता हूं मोदी से ज्यादा हम्बल जो था वो लास्ट टाइम वाजपेयी होता था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ठीक है। उनका एक बीजेपी में कद काट भी था। मैं हिस्ट्री का भी तालिब इल्म रहा हूं, कुछ जानता हूं अच्छे तरीके से, कि उस बंदे की अपनी एक क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, शायद मोदी साहब से बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, ठीक है।
لیکن اس بندے نے آ کے جیسے پچھلے سب کو کر دیا، یہ تو ان کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے مودی صاحب کہ جو سردار ولبھ بھائی پٹیل یا گاندھی جی کی لسٹ تھی یہ ان کی لسٹ میں چلے گئے، جو حقیقت ہے، اٹس اے ریئلٹی. تو وہ آتے تو پاکستان کی جنریشن انڈیا کی ترقی دیکھ دیکھ کے ایگنوسٹک ہو جائے گی، اور ہو چکی ہے. پاکستان میں بہت لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں. اسلام آباد میں آپ اویس بھائی سے پوچھیے گا، میں آپ کو ویسے ایک بات بتا رہا ہوں، اسلام آباد میں اویس بھائی تو رہے ہیں نا، ان سے پوچھیے گا کہ جو پوش ایریاز ہیں اسلام آباد کے، وہاں کی میجورٹی آپ کس فرقے میں دیکھتے ہو یا کس طرف دیکھتے ہو اسلام کی طرف؟ ارے بھائی ان کا اشر و شیر بھی نہیں ہے. یہ جو پاکستان کے پولیٹیشین ہیں یہ اسلام سے بہت دور ہیں، لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا، صرف پالیٹکس کے اوپر مفتی طارق مسعود بنے ہوئے سارے. بالکل بالکل. اب طارق جمیل نے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. ہمارا بچپن گزرا ہے طارق جمیل صاحب کی تقریر کے لیے 2-3 گھنٹے. تبلیغی جماعت کا یہ ایک ہوتا تھا، وہ لاہور میں ہوتا تھا، رائے ونڈ میں نا، اور ایک کراچی میں بھی ہوتا تھا. وہ ان کا بیان سننے کے لیے 2-3 گھنٹے ہم ویٹ کرتے تھے یار. چھوٹے ہوتے تھے. طارق جمیل ایک کریز ہوتا تھا، اور یقین کریں اس بندے نے بہت عزت کمائی ہے جب تک یہ میڈیا پہ نہیں آیا. اور جب یہ میڈیا پہ آیا اس بندے نے وہ کام کیے جن کاموں سے مسلمانوں کو منع کرتا رہا. ہمیں لگا دیا 70 فٹ کی ہور کے اوپر، سارے سیڑھیاں ہی ڈھونڈتے رہے کب تک پہنچیں گے وہاں تک، اور خود لگ گیا برانڈ بنانے. صحیح بولے. خود اس نے دنیا کا پیسہ جمع کیا، ہمیں کر دیا آخرت کے اوپر لگا دیا. ابے بھائی کون سی آخرت یار؟ کچھ ایک تو دکھا دو یار، کوئی ایک سینس تو دکھا دو. صحیح بات ہے. ایکس مسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کو. ابے بھائی کس چیز پہ؟ دیکھو وہ کامیاب کیوں ہو رہے ہیں، ایکس مسلم کیوں جا رہے ہیں. میں بینگا مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میں ابھی نہ ایکس مسلم ہوا ہوں نہ ایگنوسٹک ہوا ہوں، لیکن میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ کے اگر 10 دوست ہیں نا تو 8 یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں. ہم اسلام سے پاکستان کے اندر پچھلے 2 سے 3 سال میں آپ کو ایک اور ریئلٹی بتاؤں، شاید میڈیا نہیں بتائے. یہ جو مولوی نے روئے تھے، آپ نے سنا ہوگا، میڈیا پہ پروگرام آیا تھا. جی آواز گئی زکریا صاحب آپ کی؟ آواز چلی گئی. اچھا ایک منٹ، سوری وہ ایڈ آ گیا تھا. میں کہہ رہا ہوں وہ ساحل بھائی آپ نے پروگرام دیکھا تھا پاکستان میں جو مولوی صاحب رو رہے تھے کہ 4 لاکھ ایکس مسلم ہے، 5 لاکھ ہے. جی ہم نے اس پہ ریئیکشن ویڈیو بھی بنایا تھا. وہ آپ نے ریئیکشن ویڈیو بہت چھوٹا بنا دیا سر. مولانا حضرات جب اپنے گھر پہ دعوت پہ یا اپنے جلسے میں کوئی 500 بندہ آتا ہے یا 600-800 بندہ آتا ہے نا، تو یہ لوگ ان کو کہتے ہیں 20,000 عوام آئی تھی. لیکن جو ان کے خلاف بندہ جاتا ہے اس کو یہ 4 گنا کم کر کے پیش کرتے ہیں. اس نے 25 لاکھ کہنا تھا، اس نے 5 لاکھ کہہ دیا، وہ اس پہ بھی رو رہا تھا. صحیح. جبکہ ریئلٹی یہ سمجھ لیں کہ آج تک جب ہمارے پاکستان کے مولویوں نے اس چیز کا اقرار میڈیا پہ کیا ہے، جبکہ یہ چیز کو دباتے رہے، نہیں یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اب اتنی ہو گئی کہ ان کو منہ سے 5 لاکھ کہنا پڑا. اب آپ خود سوچیں، خود ازیوم کریں کہ کتنی تعداد ہوگی. 24 کروڑ میں سے 5 لاکھ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ 0.01% بھی نہیں ہوتی. کیا اتنے سے ایشو کے لیے وہ بندہ میڈیا کے اوپر بات کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا. صحیح بات ہے. تبھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سر 1 کروڑ سے اوپر ہے یہ. جتنے اس نے 5 لاکھ کہے تھے نا، اتنے تو پنڈی اسلام آباد کے اندر ہی ہوں گے 100%. بہت زبردست. پھر تو یار میں تو چاہوں گا کہ یہ جتنے ایکس مسلم وہاں تعداد بڑھ رہی ہے، اور خاص کر کے ان میں جو بڑی بڑی پوسٹ پہ اگر ہے تو ان کو سامنے آنا چاہیے. اور یہ جو کس طرح آئیں گے سر؟ جان کا پاکستان میں تھریٹ نہیں کا آ سکتا مسئلہ ہے. نا سہیل بھائی. لیکن کچھ تو صورت نکلنی چاہیے نا کہ وہاں کا ماحول چینج کیسا ہو. میرے خیال سے ایک ساتھ اگر روڈ پہ نکل گئے لوگ تو شاید کچھ ہو. پتا نہیں، ہوگا. کچھ نہ کچھ نظام ہونا بدلنا چاہیے. پڑے گا پورا. آرمی کے انڈر میں ہے نا، جب تک نہیں ہو سکتا. سر یہ آپ کو چینج کرے گا. آپ کو دیکھیں، آرمی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو چینج کرتی ہے آپ کو ایک سوشل میڈیا. ٹھیک ہے، یہ پچھلے 4-5-6 سال سے 2010 کے 2015 کے بعد سوشل میڈیا جا کے اسٹرانگ ہوا ہے. اور جب بھی کوئی ایک امپیکٹ پڑتا ہے کسی جنریشن کے اوپر تو وہ اپنا اثر جو ہے وہ اگلے 10 سے 15 سال بعد جا کے بتاتا ہے. آج جو جنریشن 15 سال 16 سال 20 سال کی ہے وہ 70%، میں آپ کو 100% گارنٹی دے رہا ہوں، وہ 70% اسلام کی
को मानती ही नहीं है। अब माँ बाप ने ये बच्चों को कहना छोड़ दिया है कि जाओ नमाज का टाइम हो गया है। अब ये कहते हैं बेटा नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होता है। पहले हमारे टाइम पे हाँ। कहा करते थे तूने नमाज नहीं पढ़ी, तूने जोर की नमाज नहीं पढ़ी, उस शैतान के साथ सोता है, तू फजर के टाइम नहीं उठता। अब माँ बाप कहते ही नहीं है। अब आप सोचें जो ये जनरेशन आगे जाएगी ये क्या करेगी, ये कहेंगे बेटा तुम्हारी अपनी चॉइस है, जो दिल करता है वो करो। अच्छा हाँ, बात बतानी थी जो मेरे जहन में आई थी। पाकिस्तान में पिछले 1 से 1.5 साल में आप किसी कोई सर्वे करवाएं या किसी से भी पूछे, सर लोगों ने अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करवाना छोड़ दिया। पाकिस्तान में जी, पाकिस्तान में लोगों ने मदरसे में दाखिल करवाना तो छोड़े, बच्चों को निकाल लिया है। ठीक है, मैं पर्सनली नहीं बताना चाहूंगा, मैं वैसे ही आपको इशारा कर रहा हूं कि मेरे एक अपने कजन का 2 बच्चे थे, एक बेटी थी। अच्छा, वो मदरसे जा रहे थे, मैं इत्तेफाक से गया उसके पास, मुलाकात हुई, चाय वाय पी बैठ के, तो वो बच्चे और बेटी साथ जा रही थी। बेटी बड़ी थी माशाल्लाह 7-8 साल की, एक बेटा उससे बड़ा था, एक बेटी से छोटा था। अच्छा, वो जा रहे हैं गली के अंदर, मैंने कहा ये कहाँ जा रहे हैं, बोला मदरसे में। तो मैंने कहा ये मस्जिद तो ये रही, वो मदरसा मस्जिद के साथ ही था, ये आगे कहाँ जा रहे हैं। बोला वो जो बेटी है ना वो उनके घर पे पढ़ते हैं, कारी साहब की जो मोहतरमा है मिसेस वो पढ़ाती हैं, और बाकी बच्चे उसको बहन को छोड़ के फिर खुद जाके मदरसे में पढ़ेंगे। मैंने कहा यार तुम भाभी को क्यों नहीं कहता। बोलता है यार वो आलिम है, हाफिज है। मैंने कहा वो तो ठीक है, मौलवी साहब समझ में आ गए, वो जो खातून के घर पे जा रही है उनके घर पे कोई नहीं है, उनके घर पे कोई मेल नहीं होगा, उनका बेटा उनका भाई। मैंने कहा थोड़ा सा यार चीजों को सोच तू आज कि क्या होता है। अच्छा, वो उसको वक्ती तौर पे तो मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगी। इत्तेफाक क्या हुआ कि वो जो मोहतरमा जिसका बता रहे थे कि वो बच्ची को पढ़ाती है, वो गली से बाहर निकली इतनी देर में, तो बच्ची साथ वापस आ रही थी। बोला क्या हुआ, बोला यार छुट्टी हो गई ना, बाजी ने जाना है कहीं काम से। तो वो आई, उन्होंने मुझे सलाम किया। अच्छा, वो हुआ ये कि हम लोग हाई स्कूल में ना एक टाइम पे साथ टाइम गुजार चुके थे, पढ़ चुके थे, शायद 7 क्लास या 8 क्लास। तो अरे दिखिया भाई मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं, मैं फला फला। अच्छा 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 अच्छा, वो मौलवी साहब की बेटी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी यहाँ शादी हो गई। अच्छा हाँ हाँ हाँ। अब मैं तो यार उस बंदी का टोटल बैकग्राउंड जानता था। मैंने अपने कजन को बोला कल से अगर बच्चे गए ना तेरे इसके पास, खुदा की कसम मैं तेरे को आके सुनाऊंगा, भाभी को मैं सुनाऊंगा। तो निकाल दिया फिर उनको। सर क्यों नहीं निकाल दिया सर, वो बच्चे तो मासूम होते हैं ना, मेरे किसी के भी। बिल्कुल। इस तरह के लोगों के पास, दरिंदों के पास हम क्यों भेजे। वो टाइम नहीं रहा साहिल भाई इन लोगों के पास। अब तो मौलाना हजरात मदरसों के अंदर ये मोबाइल मिल गया, मोबाइल मिल के हो सकता है कोई सोशल मीडिया के साथ ये देख दाख के को थोड़ा सा मास्टरबेट के साथ इनकी वो जान छूट जाए, वरना यकीन करे बच्चों का बुरा हाल है। हाँ, वो ये भी संजा बात खाने तो आपकी होते ही सही है ना है। वॉशरूम में। पाकिस्तान हाँ के हाँ अंदर मस्जिद का संजा खाना है पाकिस्तान में यार। एक मस्जिद है, उस मस्जिद के संजा खाने में मैं गया, मुसाफिर खाने में था, हाँ। सफर कर रहा था बाय रोड। तो क्या मलाई अब वो दिखी उधर? संजा खाना टॉयलेट यार। हाँ नहीं, उधर क्या हाँ, मलाई दिखी आपको? अरे रुके तो सही। अच्छा। बात तो पूरी करने दे। मैं टॉयलेट में गया, आप पाकिस्तान के किसी भी कोई और मेरे अलावा आएगा ना, उससे पूछना पाकिस्तान में जब आप मस्जिद के किसी भी टॉयलेट पे जाते हो ना, तो उसमें सबसे पहले ऊपर पता है क्या लिखा होता है, रोबीना टेलीनॉर नंबर 500 रुपए में। अब मैंने कहा तारिक जमील क्या या मदरसों के टॉयलेट्स में भी आके हूरों के नंबर लिख के देके जा रहा है। मैंने कहा यही ले लो, तुम्हें वहां तो हूरें मिल ही नहीं है। अरे यार ये क्या है एडम साहब, ये तो पाकिस्तान की एक अलग ही तस्वीर बता रहे हैं यार। भाई कह रहे हैं एडम भाई मेरी बात की तस्दीक करेंगे। ये एडम भाई अब पाकिस्तान अरे में नहीं है, लेकिन मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। अरे जकरिया साहब आप रुको, मैं जरा दिखाता हूँ। साहिल भाई ये पकड़ो। ये क्या है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हाँ नोटिस नोटिस है ये अटेंशन। पाकिस्तान का कॉलेज का। और ये सब्जेक्ट मास्टरबेशन नोटिस। अरे ये हाँ किस तरीके की नोटिस शाया अरे करनी पढ़ा पड़ तो रही है सही इसको? पूरा। अब मास्टरबेशन के भी नोटिस आ गए। हाँ मैं पढ़ लेता हूँ, रुक जाइए। डियर स्टूडेंट्स, मास्टरबेशन इन दिस वॉशरूम is a violation of the National College of Arts non-academic student code of conduct. The sewage pipes are not designed to handle semen. Excessive amounts of semen in the pipes causes clogging
which cost the university tens of thousands of rupees to replace. This cost will be reflected in next year's tuition fees. It's your money. Please masturbate at home. For any questions or urgent masturbation request. यार मेरे को ये फेक लग रहा है यार. नहीं नहीं ओरिजिनल है. अरे नहीं ये सवाल ही फेक नहीं नहीं है, फेक नहीं है भाई. ओ माय गॉड, तू Original देख ली है. होगी पाकिस्तान वालों ने. ये फेक होगा यार, फेक होगा. मैं- चलो नहीं कोई नहीं नहीं. फेक नहीं है यार. ये एक Original है मिनट भाई, मैं इनकी original है. यार अमित भाई ये कब की है, डेट कब की है नोटिस? ये अभी इसी 1 जनवरी 2024 की है. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. ये हो ही नहीं सकता है. पाकिस्तान का ऑफिशियली नोटिस आ रहा है यार. ये अरे अवैध 100% भाई होगा. के ट्विटर हैंडल से लिया था मैंने. अच्छा बिल्कुल नहीं, 100%, बिल्कुल 100%. मेरे ख्याल से मसला फेक ये होगा. मसला साहिल भाई पता है क्या है? मसला पता है क्या है? 47 में हमें अलग तो कर दिया है, ठीक है. हाँ. अब आप लोगों ने मौलवी के साथ पता है क्या सीन किया है? आप लोगों ने पाकिस्तान के मौलवियों के साथ, मैं आपको रियल पिक्चर बताऊंगा यार. थक गए हम लोग डर डर के रह के. एडम भाई सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ एडम सर. साहब आ जाएंगे, आप बोलिए. हाँ, ये सासू मानी सुन रही ना, वो मेरी तायद करेगी ना पाकिस्तान से के. ये पाकिस्तान यहाँ पे ना हमारी तबलीग में आपने एक लतीफा सुना है, वो चर्सी वाला, वो तबलीगी जमात वाले चर्सी को ले जाते हैं साथ. नहीं सुना है भाई. मैं आपको सुनाता हूँ, पाकिस्तान में मशहूर है बड़ा. अच्छा एक ना- थोड़ा सा शॉर्ट में रखना जिक्रिया भाई ने, तो फिर आज जी, जी. हम मोमिन से बात ही नहीं कर पाएंगे जी. अरे मोमिनों से बात कर, मोमिनों की गांड जला जला के तुमने बेड़ा गर्क कर दिया. अब और क्या बात करनी है उनसे यार? अरे नहीं तुम्हारी बातें सुनने के बाद मोमिन जाके अपनी बीवी के ऊपर ही गुस्सा निकालते हैं. अरे जकरिया साहब कंट्रोल करो थोड़ा. कोई नहीं हकीकत बात है बताए, यार. जल्दी बताए. अमित भाई एक चर्सी होता है, वो चर्सी बैठा हुआ होता है, तबलीगी जमात वाले जैसे जाते हैं सबके पास, उसके बाद भी चले जाते हैं. उसको बोलते हैं भाई तू हमारे साथ टाइम लगा ले. वो बेचारे के पास पैसे होते नहीं है पीने पिलाने के. वो एक आध फिर जो अमीर साहब होते हैं वो कहते हैं यार तू साथ चल ले, मैं तेरे को लेके दे दूंगा. वो इस लालच में चला जाता है कि चलो एक आध छूटा तो मिलेगा. अब वो मस्जिद में चले जाते हैं. मौलवी साहब पहली मस्जिद में गए. अच्छा, जैसे ही वो तालीम वगैरह की, मस्जिद के मोहल्ले वाले आए तो उसको बिठा लिया था. उसको खड़ा करके बोला ये देखें जी, ये दुनिया जहां में भटके हुए थे, गटर के ढक्कन चोरी कर रहे थे, घर का सामान बेच रहे थे, ये चर्सी थे, मवाली थे, देखें हमने इसको अल्लाह के रास्ते पे लगा दिया. अच्छा जी, वो माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके फिर अगली मस्जिद में, इसी तरह 3-4 मस्जिद में जाते हैं. वो चर्सी पक जाता है. वो बोलता है यार ये क्या चक्कर है, ये हर जगह मेरे को खड़ा कर देते हैं. अच्छा, वो एक मस्जिद में खड़ा करते हैं मौलवी साहब, ये देखें जी. बोलता है यार अमीर साहब यार बस कर दो यार, मैं जा रहा हूँ वापस, मेरा कोई फायदा नहीं है. मुझे तो इतना तो मैं साला 40 साल में करके बदनाम नहीं हुआ था जितना तुमने 4 दिन में कर दिया मुझे. तो ये हंसने वाली बात आगे आएगी. ये जो चर्सी है ना, ये मिसाल इनकी पाकिस्तान के मौलवियों की है. और जो अमीर साहब है ना, बोले भाई आप हो. आप लोग इनको ले जाके हर जगह बदनाम कर रहे हो. वो कह रहे हैं यार इतना कुछ सालों से हम बचा के बैठे हुए थे, इन्होंने हमें सब कुछ खोल के रख दिया. बिल्कुल जबरदस्त आपने फरमाया. जी जिक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, और बड़ा मजा आया. ये पोर्शन को जो है हम काट के अलग से भी अपलोड कर देंगे ताकि लोगों को थैंक यू सो मच. अच्छा, आपको साहिल भाई अगर आपसे कोई कांटेक्ट हमने करना हो, या पाकिस्तान में जो रहते हैं, जो जैसे दोस्त हैं मेरे, सब ने करना है, वो डरे हुए होते हैं. अगर मैं आपकी स्ट्रीम उनके साथ शेयर करता रहता हूँ. भाई एक मेरा दोस्त है, उसने अपने भाई, उसके भाई का मेरे पास आ गया ना मैसेज, फोन आ गया. उसने कहा यार ये कौन से कामों पे लगे हुए हैं. मैंने कहा यार मैं सुनता हूँ, तो मैंने उनको भी शेयर कर दी. बोला नहीं इनसे दूर रहा करो, फलाना किया करो. तो बहुत से लोग हैं वो इस कैद से निकलना चाहते हैं. अब आप लोग हेल्प आउट इसी तरह कर सकते हैं कि हम उन तक एक्सेस पहुंचाएं आपकी. बिल्कुल. तो वो आपके साथ हम कोई कांटेक्ट किस तरह कर पाए पाकिस्तान में बैठ के? पाकिस्तान में तो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है कि जो ऐसा कोई ग्रुप बनाया हुआ हो. अभी कोई एक्स मुस्लिम पाकिस्तान के नाम से कोई मैंने देखा था पेज चल रहा है, वो पाकिस्तान में ही है. मतलब उनसे हम कर सकते हैं बात. आप है ना अवेज भाई से कांटेक्ट में आओ. अवेज भाई के उसमें जो है ना वो पूरा ग्रुप बैठ, इस कैद से निकलना चाहते हैं. अब आप लोग हेल्प आउट इसी तरह कर सकते हैं कि हम उन तक एक्सेस पहुंचाएं आपकी. बिल्कुल. तो वो आपके साथ हम कोई कांटेक्ट किस तरह कर पाए पाकिस्तान में बैठ के? पाकिस्तान में तो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है कि जो ऐसा कोई ग्रुप बनाया हुआ हो. अभी कोई एक्स मुस्लिम पाकिस्तान के नाम से कोई मैंने देखा था पेज चल रहा है, वो पाकिस्तान में ही है. मतलब उनसे हम कर सकते हैं बात.
आप है ना अवेश भाई से कांटेक्ट में आओ। अवेश भाई के उसमें जो है ना वो पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, तो आप अच्छा अच्छा, उनसे हाँ सही 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 सही, अवैध भाई से कांटेक्ट कर सही लो तो कह रहे हैं। आपको सही जगह पे वो पहुंचा देंगे। अच्छा बिल्कुल ठीक है, मुझे यार ले लिया करें जब भी मैं ट्राई करूंगा। आज पहली दफा आया हूँ आपसे बात करके, कुछ दिल का बोझ हल्का हुआ है, तो मेरे लिए चलिए, दुआ भी बहुत कीजिएगा, जो आप लोगों की अपनी दुआ होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जिक्रिया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई, साहिल भाई, खुश रहें। थैंक यू सर। आप भी खुश रहे सर। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओह, दैट वाज अच्छा साहिल ग्रेट। भाई, एक नीचे प्राइवेट चैट देख लो जकरिया साहब को एक रवाना करने से पहले। ये कौन है? अच्छा, ये प्लीज कॉल पे ले काइंडली। नहीं यार, बताओ इसको, अभी कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, बड़े देर से पेंडिंग है। ये इमादुल इस्लाम को ले लिया दिख रही है, मुझे ही ले लो, उसके इमाद के साथ मुझे भी ले लो। अच्छा चलो, इनको एक 5 मिनट का मौका देते हैं। 5 मिनट का मौका दे और मेरी इनसे बात करवा दीजिएगा बस। ठीक है, चलो 5 मिनट। हाँ, सिर्फ जिक्रिया साहब और श्योर इमाद श्योर साहब, श्योर श्योर। 5 मिनट है आप दोनों के पास। 3:06 हो रहा है। 7, 8, 9, 10, 11, 3:11 को आप लोगों का टाइम खत्म होगा लड़ाई झगड़े का। जी प्लीज गो अहेड। जी जनाब, मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ज़करिया साहब ये कह रहे हैं तारिक जमील साहब के हवाले से, मैं लेकर आया हूँ मौलाना तारिक जमील साहब को हफ्ते को, और आपने एक सुनते थे तो मेरी इज्जत तो आज भी उनकी है, मौलाना तारिक जमील साहब की है। उन्होंने कभी किसी के अगेंस्ट बात नहीं की है। जहाँ तक दूर की, तो वो तो कौन सा आप पकड़ लें। ज़करिया साहब, आई नो यू आर अ मुस्लिम, लेकिन ये कि एथियस से हमारे इख्तलाफात हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर है, और भी मसाइल पर है। लेकिन ये कि आप ज़करिया साहब, आप प्लीज कुरान को स्टडी करें और नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस को स्टडी करें। ओके, मैं ये नहीं कह रहा आप किसी फिरके को साथ जुड़ जाएं, सही हदीस को स्टडी करें और सबको इस्लाम की दावत दें। एथियस्ट हो, कादियानी हो, ज्यूस, क्रिश्चियंस, हिंदू, सबको आप दावत दें, लेकिन अच्छे अखलाक के साथ दावत दें, प्यार मोहब्बत के साथ दावत दें, प्यार उल्फत के साथ दावत दें, और किसी को यानी कि ना वो सरतन से जुदा ये चीज ना हो। और ये हम ये करते इसका एक कायल भी नहीं है, हम मोहब्बतों के कायल है, हम तो प्यार वाले हैं, हम तो मोहब्बतों वाले हैं और नबी अलैहिस्सलाम, मगर अच्छे अखलाक के साथ, प्यार के साथ। ये आपको गुजारिश है ज़करिया भाई, बाकी आपने बात करनी है करें। इजाजत है मुझे बोलने की? जी जी सर बोले। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। इस्लाम में रात को सोने का टाइम ईशा के बाद का रखा है, आप रात को 2:30 पौने 3 बजे किस लिए जाग रहे हैं? कोई इस्लामिक पर्पस है आपका? रेफरेंस दें, पहली बॉल में छक्का। रेफरेंस दें। नहीं, हमने सुना है, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो यू कैन टेल मी टू। सर दिस इज अनफेयर। रेफरेंस दे सही हदीस से। नो प्लीज आई हैव नो एनी कैपेबिलिटी टू स्पोक इन इंग्लिश। मुझे पता है इमाद भाई, आपने 4 से 5 वर्ड्स याद करके रखे हुए हैं। अमित भाई 1 मिनट, 4 से 5 वर्ड्स याद करके रखे हुए हैं आपने। आप वही बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नॉनसेंस बोलते रहते हैं। रेफरेंस किस चीज का? व्हाट इज द रेफरेंस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस? कैन यू टेल मी? यस आई नो, मैं बताता हूँ ना सर। आपने जो फाइन ओके you are alim, I'm not alim. Just listen me. आपने बोला, मैं बीच में नहीं बोला। सर आप बोल रहे हो, ये तो मसला है, आप अखलाक की बात करते हैं लेकिन अखलाक के ऊपर रहते नहीं है। आपने बोला, मैं चुप रहा, साहिल भाई मैं चुप रहा, अमित भाई मैं चुप रहा। आपके बोलने के बाद मैंने बोलना शुरू किया, आप मेरी बात कंप्लीट होने दे। इस्लाम में रेफरेंस के साथ, मैं एक स्टूडेंट होकर बात कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं। इस्लाम में रेफरेंस के साथ रात को सोने का टाइम कब का अल्लाह ताला ने हुक्म किया हुआ है? सर रेफरेंस आपने देना है। अभी आपने बात की है, आपने बात सुनी नहीं मेरी, दावा आपने की है ना, क्लेम आपने की है, रेफरेंस आपने देना है। मैं अच्छा, आप एक इंजीनियर से डॉक्टर से रेफरेंस ले रहे हैं? सर वही के गल बड़ी वो दांत ऐसा बॉक्सर को दलील करके वो बंदों से दलील होकर निकल गया है। प्लीज गाली नहीं, मिसबिहेव ना करें, मिसबिहेव ना करें। ओके ये क्या बोला? दांत में थले मिसबिहेव ना करें, डड्डू ना के आप बात करने मैंने रेफरेंस। सॉरी, आई अपोलोजाइज, जस्ट लिसन मी, चलो रेफरेंस मुझे नॉलेज
हाँ, मुझे इस चीज का रेफरेंस नहीं है। मैं एक आम तालिब इल्म हूँ। मैंने इस्लाम सुने पूरी बात सुनिएगा। मैंने अरे दरवेज रुको यार, मुस्लिम की दुकान। अच्छा पता है क्या होता है? जकरिया साहब सुन तो ले ओए डड्डू। स्क्रीन पे है, जकरिया साहब रेफरेंस स्क्रीन पे है। यार अमित भाई, इस बंदे की रियलिटी ये है, ये एक डुगडुगी बजा के जाएगा, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला लॉजिक से बात कर रहा है, इन लॉजिक से बात कर रहा है। आपने रेफरेंस सामने रख दिया, यही रेफरेंस मुझे नहीं था याद, मैंने इससे पूछा था। ये घंटे का आलिम है सर। इमाद भाई, ये आपके पास रेफरेंस, रेफरेंस, इमाद भाई ये रहा रेफरेंस। इमाद भाई स्क्रीन पे रेफरेंस आ रहा है। सर आपने रेफरेंस देना है। अरे आप अच्छा, इनको ना मैंने इनको ना इमाद पकड़े। भाई, इमाद अच्छा भाई कीप क्वाइट, डिस्कस में कीप इंटरव्यू क्वाइट, करवा कीप रहे हो। क्वाइट, कीप क्वाइट। एक मिनट रुकिएगा, मैं रेफरेंस देता हूँ। आप बात की, ये मेरी बात सुने। एक मिनट, मैं सुन रहा हूँ सर, तिलावत हो रही है, बीच में ना बोलिएगा इमाद भाई। इमाद भाई मैं रेफरेंस देने लगा हूँ, ये कुरान की आयत है। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लियासन वल यौम सुजुम व जअल नहार। ये एक मिनट इंग्लिश पढ़ देता हूँ, आपको तो अरबी नहीं आती होगी, इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। एंड ही इज अ हू मेक नाइट कवरिंग टू यू एंड स्लीप रिपोज एंड एक मिनट क्या है के डे और वही है जिसने रात को बनाया तुम्हारे लिए ओढ़ना और दिन को। अच्छा ठीक है, ये रेफरेंस नहीं है, ये रेफरेंस है। अल्लाह तो के ये क्या है? बंदो आपको कौन सा बेवकूफ को, reference चाहिए? आपने बात जो की है, आपने कहा है कि ईशा के बाद सोना, ईशा के बाद का सोने का रेफरेंस दें। अच्छा आयो ना दाड़ एक मिनट, आपकी डांड के थल्ले और कुछ आता नहीं है, आप लोगों को लेते रहते हो। आप इल्मी बात करें, अच्छा, भागना पता नहीं क्या है? है। मैं एक बात बताऊं, यार बात ये है, इमाद भाई, एक सेकंड, छोड़ दे इनको, एक सेकंड, मुझे एक भाई मिनट एक बोलने सेकंड, दीजिएगा यार प्लीज खान प्लीज। साहब रुके यार, सर रुके एक सेकंड यार। चैनल की एक वैल्यू है, एक औकात है। कुत्तों के भौंकने से क्यों क्यों यार, नहीं, एंड दैट्स इट। I will not टोटली एग्री let this विद यू, channel go. टोटली एग्री विद यू। बट यार एडम भाई, he's a son of a ये bastard. बंदा मिसगाइड कर रहा है लोगों को। नहीं, मिसगाइड नहीं कर सकता। People know how stupid and idiot this is. So इससे एक दफा बात कर ली थी। He's done. He's finished. He's Tata. He's bye bye. I don't bloody care, man. Let him go burn in Okay hell. fine, Let him go okay clean the fine. gutters. There is a level. He's below this level. I don't bloody care. All right, sir. Thank Okay you, sir. fine. today आपने बड़ी अच्छी बातें की। Thank you so much, sir. बहुत शुक्रिया इसी के साथ एडम को भाई, लेते खुश हैं, रहे। आगे चलाते हैं, sir. थैंक यू।